आपका बहुत बहुत स्वागत है रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट में जिसका नाम है चेतना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट विद अस मिस्टर जतिंदर सिंह, क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट एट रोटरी इंटरनेशनल साउथ एशिया. थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो सर. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure to be part of this setup. Yeah, thank you. थैंक यू सो मच कि आप आए और सबसे बड़ी बात कि आप रोटरी में इतने सालों से जुड़े हुए हैं. इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग एंड फ्रूटफुल जर्नी. सो प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी. हाउ डिड इट बिगिन? और जब आपने सोचा था रोटरी ज्वाइन करने का, तब आपने सोचा था कि आप कभी भी इस मकाम पर या इतना लंबा एसोसिएशन रोटरी के साथ आपका रहेगा? Thank you so much, ma'am. I think that's a very, very pertinent question because I'm from an investment banking background. I worked overseas as well in United States, and then I was at Mumbai because I belong to a financial services field. As I said, I'm from investment banking background. Then somehow this opportunity came to be a part of the Rotary International Secretariat. And even though you won't believe that I came with a pay cut because yeah, but I thought the kind of offer that I got and the kind of so-called inducement to the offer was that you are doing something meaningful. Yes. You will be a part of a meaningful journey, providing community service to thousands of people. Being a part of this dog eats dog world of investment banking, I could never have ever dreamt of such kind of an opportunity. So I stepped back, took some time to decide, but then made this switch from Mumbai to Delhi. And you won't believe it's been such a satisfying journey because if I would not have been satisfied, nobody would have been sticking to such a job for 17 or 18 odd years. So this is my 18th year with the organization here. And I've been really blessed seeing the Rotary's exponential growth, not only in India but in South Asia as well. Working with so many leaders, Rotary leaders who are making a difference to the world, making to the difference in the communities around both locally and internationally as well, and a thought-provoking journey. And it's a unique organization, 118 years old. How many organizations can we think of which are 118 years of legacy continuing despite all the turmoil and upheaval all over the world? And yet it's been such a fulfilling journey, and there would not be any other organization where you would see that the entire organization chain, right from the CEO to the operational level management, they all change every year. Come 1st of July, we have a new Rotary International President, new district governors, new zonal leaders, and new club officers. Right. Which other organization would provide this kind of a change every year and yet continue to be focusing on the humanitarian endeavors over these years? Change and exposure to lot many people, a chance to be a service provider, to serve socially. अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो रोटरी से जुड़ते हैं, लेकिन उनका जो मेन काम है वो चलता रहता है, उनका ऑक्यूपेशन चलता रहता है, वो रोटरी से जुड़े रहते हैं उनकी सोशल सर्विस के लिए. लेकिन आप तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से फुल टाइम जुड़े हुए हैं जो आपका लिविंग भी है और जो आपका अर्निंग भी है और आपका सोशल सर्विस प्लेटफॉर्म भी है. सो हाउ डज इट हैपन? Yeah, so as you correctly say, ma'am, it's a kind of a dream job for me. It's all rolled into one. I'm getting something to earn for, though as I said, I took a pay cut and joined this organization, but I don't regret it for one bit. The kind of challenges, and I really look forward to coming to the office every day. Wow. What kind of job satisfaction would any other organization give कि रात में आदमी is so energized कि वो सुबह सोच रहा है कि अब मुझे कब सुबह और मैं ऑफिस जाने का मौका मिले. क्या बात है. So it is the kind of exposure I have had got, the platform, as you correctly said, the platform that has been provided, looking after so many Rotarians, not only in India, we look after the other 8 countries in South Asia as well, including Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives and Bhutan. Wow. And then we work with the International Secretariat at United States, and then we have these different regional offices all around the world. So we get a chance to interact with other colleagues all over the world, get to know their culture. As you know, Rotary promotes international understanding and goodwill. So this gets really to us as well, that we are able and exposed to be to the working environment of so many cultures, to get to know the colleagues of so many offices as well. Yeah. रोटरी का हर साल ना थीम चेंज होता है. एक पर्पस तो वही रहता है सोशल सर्विस का, लेकिन थीम चेंज होता है और उसके हिसाब से गोल सेट होते हैं. और आप इतने सालों से 17 इयर्स से आप रोटरी से जुड़े हुए हैं. एंड हम ये नहीं कहेंगे कि बाहर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं भी एक रोटरी मेंबर हूँ,
लेकिन मैं बाहर से जुड़ी हुई हूँ, मैं ये कहूंगी। और आप एक रोटरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी करते हैं और आप बहुत सारी कंट्रीज से भी जुड़े हुए हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन होगा कि आप ऐसी कौन सी 3 चीजें रोटरी के बारे में बताएंगे जो बहुत सारे रोटरी के मेंबर्स नहीं जानते हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स सोशल सर्विस? Okay, that would be a very challenging question, so to say. But yes, I think number one can be कि हमारा we have these political and economic differences with some of our neighboring countries. I would not like to name them, but despite that, I've seen the kind of people to people contact. According to me, जो मैंने सीखा है कि मेरे भी बहुत सारे prejudices हैं और having my exposure to different news channels, but मैंने देखा है when you look at people from the so-called hostile countries, I think every individual at heart is a human being. कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं दूसरे ह्यूमन बीइंग को हर्ट करूं. सो जब ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मैं साक्षात देखता हूँ, आई विटनेस दिस एवरी डे. आई communicate with Rotarians from Pakistan or Bangladesh or other countries as well, and the kind of love and respect as an individual Rotarian and as an individual human being they have for the other human beings across the border, that's truly phenomenal. But unfortunately it's owing to these political issues that this people to people connect is unable to gather steam. But hopefully with Rotary's platform in full force, I think sooner or later probably it would act as a catalyst in bringing peace all over the world, not only in our region but all over the world. So that would be number one, I think. Yes. Number two, I think I'm really fortunate to have witnessed the Rotary growth story in my tenure during these last 16-17 years when I joined the South Asia office. At that time, India or South Asia was just contributing a very small significant portion to the Rotary as a global organization. But during these 16-17 years, the kind of phenomenal growth we see both in terms of membership, both in terms of contributions. India was always seen as a receiving country, कि हम लोगों से contributions मांग रहे हैं, grants मांग रहे हैं, कि we are a kind of a poor country or a growing or a developing country. But you will not believe, for the last 5 or 7 years, India has been consistently number 2 in global giving. Wow. Beating the likes of Japan, European countries, even Korea, Taiwan. So consistently for last 5 or 7 years, apart from United States of America, India has been the number 2 giving country. Great. So I've seen this movement from being recognized as a receiving country to a giving country. So I think that makes us really proud to be a part of Indian growth story. And when people come all across the world and see, और एक इंडिया का जो नाम बना है रोटरी के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, that is truly seen to be believed. Yeah. So I think these are all fortunate things, and probably some of the unknown factors which a normal Rotarian may not be knowing to a certain extent. Yeah. And those are like I said, transitioning from giving to transitioning from receiving to a giving country. Exactly. So a club member or a normal Rotarian who's not kind of exposed to Rotary at a global scale. So I think knowing all these facts really would want to make them feel proud of the organization that they are a part of. I've seen that probably 50 to 60% of the people are really contented to be a part of their own club. So they are like जैसे हम कहते हैं कि एक मेढक के कुएं जैसे एक कुआं जो है मेढक में जो जी, लेकिन बट व्हेन दे मूव आउट ऑफ दैट कुआं और जब वो देखेंगे कि रोटरी हैज सो मच टू ऑफर, एक जो रोटरी की इंटरनेशनलिटी है, रोटरी इज प्रेजेंट इन मोर कंट्रीज देन इवन द यूनाइटेड नेशंस. सो आई थिंक दिस आल्सो मे नॉट बी नोन टू मेनी पीपल. यूनाइटेड नेशंस इज प्रेजेंट इन आई थिंक अराउंड 190 odd countries and Rotary is present in more than 220 countries. Oh my god. So अगर आप अपने क्लब के लेवल से जब आप डिस्ट्रिक्ट के स्फीयर में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट के स्फीयर से आप जोनल स्फीयर में जाएंगे और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल स्फीयर में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा रोटरी की वैल्यू क्या है. द काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर यू गेट, द काइंड ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज यू गेट, द काइंड ऑफ नेटवर्किंग यू गेट. अभी तो आजकल की यंगस्टर्स जो जनरेशन है वो तो अभी ये फेसबुक और सोशल नेटवर्क में आए हैं, बट 118 years back Rotary was the original social network at that time. मतलब रोटरी ने उस टाइम के इंटरनेशनल बाउंड्रीज और सारा कुछ खत्म कर दिया था. बीइंग अ पार्ट ऑफ
of Rotary opened the international doors for everybody. So these are some of the things which probably you know what, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि 17 साल से आप रोटरी में हैं. आपकी जो बातें हैं ना वो इतनी पैशनेट है रोटरी को लेकर, वो अपने आप बताती हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से इतने सालों से मतलब तन मन धन से जुड़े हुए हैं, आई वुड से. अच्छा, आप बहुत सारे पब्लिक जो हमें सुन रहे हैं और जिन्हें रोटरी के बारे में नहीं पता है, उनको आप क्या कहेंगे कि रोटरी उन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए? There are several reasons for people to join Rotary. और इनफैक्ट अगर आपने ज्वाइन भी किया, लेकिन like I said, probably 40-50% of the people do not graduate to be becoming a proper Rotarian in the sense कि हाँ हम एक संस्था के मेंबर हैं, बट प्रॉब्ली हमें उस संस्था के बारे में उतना नहीं आइडिया. लेकिन जब हम उसके बारे में पैशनेट हो जाएंगे, जब हम सही से उससे जुड़ेंगे, तब जो एक कॉन्सेप्ट होता है पीपल नॉट नोइंग अबाउट रोटरी, उनके लिए हम एडवांटेज बताते हैं. बट ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर रोटेरियंस बट they may not be exposed to kind of Rotary, the platform that offers to them. So there are so many things. ऐसी कौन सी संस्था होगी जो like I said 118 साल से है, which is present in more than countries internationally, even more than the United Nations. Oh my It is one of the founding members of United Nations. So probably ये भी काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि Rotary International was one of the charter members of the United Nations. So it was one of the signatories of the United Nations Charter after the Second World War. So जो भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी गैदर हुई थी टू सॉर्ट ऑफ वर्क टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो भी डेवस्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था. सो रोटरी वाज आल्सो included in those deliberations, and when United Nations came into being, so Rotary was one of the organizations that signed the United Nations Charter. So ये भी जैसे लोगों को फिर रोटरी के इतने सारे प्रोग्राम्स है, राइट फ्रॉम अ स्कूल गोइंग किड टू अ पर्सन हु लेट्स से फ्रॉम 13 years to let's say 70 years or 75 years of age, सारा एक एम्बिट कवर कर रहा है रोटरी अपने एक्सपोजर में. 13 years के स्टूडेंट्स के लिए, 12 years के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरैक्ट एट द स्कूल लेवल टू अ पर्सन हु इज अ यंग एडल्ट इन द फॉर्म ऑफ रोटरैक्ट, देन अ रोटरी क्लब. अब रोटरी के हमारे यहाँ पे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक कपल क्लब्स हैं, पार्टनर क्लब्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्लब्स आर ऑल्सो स्टार्टिंग इन इंडिया, जो कि बाहर की कंट्रीज में लोगों को उतना आइडिया नहीं होता. बट लाइक आई सेड, इंडिया इज kind of becoming the torch bearer for all over the world. So वो platform आ गया. फिर then once you have settled in your life, once you have become a accomplished professional, तब आपके इतने सारे Rotary clubs की opportunities हैं. You can join those clubs and contribute to the society. So जो एक आपको mental satisfaction मिल रहा है, एक psychological satisfaction मिल रहा है, आपको business development opportunities मिल रही हैं, आपको networking skills मिल रही है, आपको leadership development opportunities मिल रही है. You may be a rich person, but often I come across people कि उनको पता ही नहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ की हमारे पास पैसा है, लेकिन हमें एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे ग्रो करना है, हमें एज अ लीडरशिप स्किल्स कैसे ग्रो करनी. रोटरी गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म. सो और आपको क्या चाहिए, एक ऐसी संस्था है जो आपको एज अ किड से लेके एज अ मैच्योर इंडिविजुअल तक सारा आपको एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ इट इज गिविंग यू समथिंग. और बदले में आपसे क्या मांग रहा है? बस आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा है. द ड्यूज भी आपसे इतने नॉमिनल ड्यूज है, लेकिन आप देखो थोड़े से नॉमिनल ड्यूज में आप एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर की कंट्रीज में आप जाएंगे, आप बोलोगे कि मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, तो लोग तो आपको दूसरी ही नजर से देखने लगते हैं. अच्छा, आई हैव सीन रियल लाइफ स्टोरीज वेयर पीपल कम टू मी एंड शेयर देयर स्टोरीज की रोटरी ने तो हमारे बिजनेस के ऐसे दरवाजे खोले इंटरनेशनल लेवल पे कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसी कोई बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आ सकती. सो आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है, आप एज अ इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हो, गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी. रोटरी आपसे क्या मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा है. तो रोटरी से मांग रहा है क्या? आपका एक पैशन मांग रहा है कि थोड़ा सा आप अपने 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट भी रोटरी के बारे में सोच लोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ. वाओ, दैट्स अ होल पूरा एक कंप्लीट फुल सर्कल है. ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भी चीज छूट रही है, पूरा फुल सर्कल लग रहा है. और जैसे कि आप बहुत पैशनेट हैं और ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर फैमिली? मतलब रोटेरियन तो पक्का वो बनेंगे ही, लेकिन फिर भी फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन है, एंड हाउ डू यू वांट योर फैमिली टू गेट इनटू रोटरी एंड हाउ मच टू कंट्रीब्यूट टू द रोटरी? सो अब आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर्सनल लेवल पे पूछा है. सो आई वुड लाइक टू से कि I joined Rotary और उसके बाद में जो मेरा पर्सनल हुआ, everything happened in my life after I joined Rotary. क्या बात है? I got married after I joined Rotary. I bought my house at Delhi because like I said I was in US and then at Bombay. So then I settled down at Delhi. I bought my house after I joined Rotary. I had my kids after I joined Rotary. Great. Obviously क्योंकि marriage के बाद में. And my kids have seen
seen me working day and night because like I said I work in an international organization. तो मैं हमारे जो इंडिया के हॉलीडेज होंगे या जो दिल्ली के हॉलीडेज होंगे दोज मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर लेट्स से पाकिस्तान और बांग्लादेश और अदर कंट्रीज. देयर जो हमारे नॉर्मल वीकेंड्स होते हैं दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल इन इस्लामिक कंट्रीज. उनका फ्राइडे ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ होता है. सो हमारे सैटरडे संडे में भी हम वर्क कर रहे हैं. देन एज आई सेड कि सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सेक्रेटरीट, हमारा हेडक्वार्टर्स यूएस में है and it is around 700 plus employees in United States headquarters. तो हमें रात को भी थोड़ा सा तो करना पड़ता है because obviously हमारे colleagues वहाँ पे हैं and we have our reporting relationships with as well with the headquarters staff as well. और हमें बहुत सारे challenges जो यहाँ पे आते हैं then we have to discuss those challenges with our headquarters colleagues as well. So जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स द सन नेवर सेट्स, सो इट्स वेरी एप्लीकेबल ऑन रोटरी एज वेल क्योंकि लाइक आई सेड 220 कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर्स है, 700 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं. देन 7 इंटरनेशनल ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड का देख रहे हैं. वी हैव एन ऑफिस इन जापान, वी हैव एन ऑफिस इन कोरिया, साउथ एशिया ऑफिस इन दिल्ली. देन वी हैव अ ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया जो कि पूरा पैसिफिक और फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया रीजन देख रहा है. देन वी हैव अ यूरोप अफ्रीका ऑफिस इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो कि पूरा यूरोप देख रहा है, पूरा अफ्रीका देख रहा है. तो हमारा क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन भी होता है. सो लाइक आई सेड हम इतने पैशनेट है कि हमें थकान लगती नहीं कि हम ऑफिस में भी काम करें इंडिया टाइम में, फिर घर आके शाम को भी हमारी मीटिंग्स हेडक्वार्टर्स के साथ में या दूसरे कलीग्स के साथ भी है. सो दैट कैन स्ट्रेच टू लेट एट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जब उनकी शाम हो रही होगी तब भी कई बार हमारी मीटिंग्स होती हैं. बट वी नेवर फील क्योंकि हम इतने पैशनेट है, हमें इतना अपॉर्चुनिटीज, हमें इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट है. वी ऑल सो हमारे मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ ने दे हैव नेवर सीन मी और दे हैव नेवर क्रिएटेड एन हिंड्रेंस फॉर मी टू वर्क. दोस काइंड ऑफ एट टाइम्स हमें वेकेशन भी कैंसिल करनी पड़ती है ओइंग टू सम ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशंस दैट मे कम अक्रॉस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय जॉब. क्योंकि आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया ऑफिस. सो आई एम वन ऑफ द 2 directors for South Asia office. So my kids have seen me, my wife has seen me, my parents and all my close relatives, they have seen me how passionate I am. So it's but natural कि वो उन्होंने वो Rotary spirit imbibe की है. And the kind of relationships I've got, सर के साथ में जो relationship है, I could probably एक past director थे Mr. Bhaskar. He's from Karur in Tamil Nadu. अच्छा. And he used to attend let's say some pets in Muradabad या एक district है 3100 जिनको हम कहते हैं. तो एक बार उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. वो उन्होंने बोला कि कोई और ऐसा क्या प्लेटफॉर्म होगा कि एक इंडिविजुअल जो लेट्स से तमिलनाडु के इंटीरियर या टियर 2 सिटी से आ रहा है और वो जाके भाषण दे रहा है या जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेट्स से रूरल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश की टियर 2 सिटीज में, तो और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एक इंडिविजुअल को इतना इंडिया को भी कनेक्ट कर रहा है. सो एक इंडिया को एक धागे में जो पिरो रहा है. सो आई थिंक I don't think there could be any other platform. So my family also feels the same way. अब मेरा अगर मैं रोटरी नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से कभी मेरा प्रॉब्लम होता भी तो एक प्रोफेशनल लेवल पे होता, एक बिजनेस डेवलपमेंट के लेवल पे होता, बट नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग. आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू अप्रिशिएट कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू. सो आई कुड नॉट एवर हैव काइंड ऑफ इमेजिन ऑल दोज थिंग्स. सो I think my family is happy with that and they also think yeah Rotary is doing wonders all across. Yeah. Wow. जब आप बोलते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब आपके तो आपकी स्पीकिंग के तो फैन हो ही जाएंगे लोग, लेकिन रोटरी के ज़रूर फैन हो जाएंगे और रोटरी को हर कोई ज्वाइन करना चाहेगा जब आप बोलेंगे तो. अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछ रही थी कि अगर 3 शब्दों में आपको अपनी लाइफ को सम अप करना हो, रोटरी के पहले के 3 शब्द और रोटरी के बाद के 3 शब्द, उनमें क्या डिफरेंस होगा? वो कौन से शब्द होंगे? वो शब्द मैंने पहले भी बोला, रोटरी से ज्वाइन करने से पहले डॉग ईट्स डॉग वर्ड, कि कोई किसी के कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई किसी में ह्यूमैनिटी नहीं है. स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो एरिया है इट्स वेरी रूथलेस काइंड ऑफ एरिया कि हमें अपनी कंपनी के लिए रिटर्न्स देना है, इवन इफ इट रिक्वायर्स कटिंग कॉर्नर्स और इवन इट kind of adopting so-called unethical means as well because ultimately we have to look at the organization profit. तो हमें कहीं पे बिजनेस लाना है तो probably
सो कॉल्ड अगर हमें कहीं किसी को ग्रेटिफिकेशन भी देना है टू गेट दैट बिजनेस, टू गेट दैट क्लाइंट, सो प्रॉब्ली सो एथिक्स का उतना रोल नहीं है. I would not mince my words but say that ethics may not be playing that kind of an important role in other business or commercial organizations, because obviously they are answerable to their own shareholders and their own companies, and they would want to maximize their profits. So this is pre-Rotary journey. Post-Rotary तो अब without ethics or without talking about community service or without talking about humanitarian needs, without talking about diversity, equity, inclusion, अब आजकल ये DEI भी एक फोकस में है. और how do we relate it to Modi ji's things about बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, women empowerment, मोदी जी का तो वो एक सपना है. So हम तो हर टाइम बस यही प्री रोटरी डॉग इट्स डॉग वर्ड, पोस्ट रोटरी इट इज how we can do something meaningful for society, for India, for our daughters. I too have 2 daughters, so अब तो मुझे पता है कि जो मोदी जी का है, we are fortunate कि हमारी daughters तो एक सिटी में बॉर्न हुई, उनके पास में प्लेटफॉर्म है, but 80% of the people are from the rural areas and they do not have those kind of opportunities which we are fortunate to have. So हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, वो कहते हैं ना एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक आदमी किसी एक के लिए तो कुछ बदल सकता है. सो अगर हम वो सोच के भी अगर डेली अपने लाइफ में चलें कि आज अगर मैं एक दिन में एक भी किसी की लाइफ में कोई भी मीनिंगफुल परिवर्तन कर सकता हूँ, सो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती. सो दैट इज व्हाट कीप्स मी अवेक एवरी डे. वाओ. एंड यू टॉक्ड अबाउट challenges as well, so we would like to know what kind of challenges a Rotarian may have. Because we have been speaking so frankly as well, so India में थोड़ी unique challenges हैं, because Rotarians here are really very passionate, so they would want to go up the leadership ladder as well, जो कि बाहर की कंट्रीज में नहीं होता. अच्छा. यहाँ पे एक बहुत ही फेमस saying है कि nobody wants to a club president but everybody wants to be a district governor. अच्छा. So to a certain extent तो हमारे यहाँ पे region में वो है कि people have, like I said, leadership ambitions. They would want to be seen as a district governor, and so at times this creates a friction. जो district governor elections होते हैं या जो issues होते हैं, वो कुछ हमारे पे unique हैं जो बाकी सारी countries में नहीं होता. And what are your solution to these problems? We have been working with senior leaders. अशोक जी के साथ में, जैसे मैंने बोला, he has been through that cycle, और अभी भी उनके साथ के जो उनके सहयोगी हैं, उनको भी कई बार वो problems face होने की पड़ती. But we have been working with senior leaders, like I said, कि जो past Rotary International प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंडिया से या हमारे रीजन से, और जो कि डायरेक्टर्स हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, हम हर साल प्रोएक्टिवली उनके साथ वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. वी हैव ब्रॉट आउट सम पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिया विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो इलेक्शंस को हमारे जो हम करते हैं कि सम ऑफ द सो कॉल्ड मेल प्रैक्टिसेस और जो इरेगुलरिटीज हैं हमारे प्रोसीजर में, उसको काउंटर करने के लिए हमने इंडिया स्पेसिफिक और साउथ एशिया स्पेसिफिक कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर विच वी ट्राई टू मॉडिफाई ईच ईयर. वो कहते हैं कि थोड़ा एक कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा को मौका कि इस बार में ये हम थोड़ा सरप्राइज फैक्टर लगे, अगले साल कुछ और सरप्राइज फैक्टर लगे, सो दैट पीपल आर अनेबल टू, दैट दोज minority of people, just a handful of people, are not able to manipulate and give a bad name to the country. So we are mindful of that fact as well. कि there are, क्योंकि अब इंडिया ने इतना ग्रो किया है, there are some people who have different views, so this kind of creates a friction, so we are try and sort those out. Yeah. राइट. सो जाते जाते लास्टली बस ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ रोटेरियन, एज अ पर्सन हु इज वेरी हैप्पी एट हिज जॉब. या सो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली. आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब, एंड एज अ लिसनर, आप रोटरी क्लब के मेंबर हो, आई वुड वांट टू से टू यू कि इफ़ यू आर, जो कहते हैं हम जागरूक रोटेरियन हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है. यू वुड नो द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट रोटरी गिव्स, जो कि हमने पहले सेगमेंट में बात की थी. बट फॉर द पीपल, लेकिन हम ये भी चाहेंगे आपसे कि प्लीज़ each one bring one to Rotary. That's also very important कि हम इंडिया में जितने ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से आपके थ्रू, क्योंकि रोटरी का क्या है, ईच रोटेरियन इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोटरी. हाउ डज मेंबरशिप ग्रो? आप अपने नज़दीकी लोगों को, अपने परिचित लोगों को जब रोटरी के बारे में बताएंगे, उनको रोटरी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बोलेंगे, तभी उनको पता चलेगा और उनकी भी भलाई होगी, आपको भी. बिकॉज एज यू नो, रोटरी इज बाय इन्विटेशन ओनली. आपको भी किसी ने इन्वाइट किया इस प्लेटफॉर्म में, आप किसी ने आपको इस काबिल समझा, ये बोला कि हो सकता है आप रोटरी प्लेटफॉर्म में आए, यू विल बी एबल टू गिव समथिंग टू दी सोसाइटी. तो मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ ईच वन ब्रिंग वन. आप भी वो लोगों को रोटरी एज अ गिफ्ट दें, उनको भी बताएं कि रोटरी क्या चीज़ है, और एज अ इंडिविजुअल लेवल पे, एज अ सोसाइटी लेवल पे, एज अ कंट्री लेवल पे आपकी रोटरी से जुड़ने की और भागीदारी में
win-win for everybody, and not only for you as an individual, but for the people across you, close to you, and all across the world as well. So Wow, that would be great, my idea. such a wonderful, amazing conversation. ये conversation में जैसे शरीर में लहू बहता है ना, वैसे इस पूरे conversation में रोटरी का soul बह रहा था. Thank you so much. Such a ma'am. wonderful Yeah, conversation. Thank you for Thank this you. platform. Thank you. Thank you so much. Jai आप Hind. सुनते रहिए ये पॉडकास्ट जिसका नाम है रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना. थैंक यू फॉर लिसनिंग.